اس وقت دنیا میں 80 کروڑ لوگ یعنی 800 ملین کی پاپولیشن ایسے ملکوں میں رہتی ہے جن کو شدید پانی کی قلت کا سامنا ہے۔ بڑھتی آبادی، کلائمیٹ چینج، بجلی کا زیادہ استعمال ہمارے فریش واٹر یا پینے کے پانی کے ذخائر پر دن بہ دن دباؤ بڑھا رہے ہیں۔ اس بات نے یہ خدشہ پیدا کر دیا ہے کہ کہیں یہ پانی کی قلت ملکوں کے درمیان جنگ کا سبب نہ بن جائے۔ پانی کے اوپر جھگڑے جن میں انسانی جانیں چلی جاتی ہیں، یہ کئی جگہوں پر معمول کی بات بن گئی ہے۔ کہیں پر بھیڑ بکریاں کسی اور کے کنویں سے پانی پی لیتی ہیں تو اس پر گولیاں چل جاتی ہیں۔ کچھ جگہوں پر تو صدیوں سے قبیلوں کے درمیان پانی کے اوپر جھگڑا چل رہا ہے۔ اب تو بڑے شہروں میں رہنے والے لوگ اور دیہاتیوں کے درمیان بھی پانی کو لے کر اختلافات بڑھ گئے ہیں۔ اس ویڈیو کے شروع میں آپ نے یہ کوٹ دیکھا ہوگا، اسماعیل سیرالدین، ورلڈ بینک کے فارمر وائس پریزیڈنٹ۔ 1995 میں انہوں نے ایک پیشن گوئی کی۔ ان کا ماننا تھا کہ جس طرح پچھلی صدی میں تیل کے اوپر جنگیں ہوئیں، 21ویں صدی میں یہی جنگیں پانی کے اوپر ہوں گی۔ اور یہ کوئی ایک ضروری شخصیت نہیں تھی جس کو اس طرح کا سینیریو بنتا نظر آ رہا تھا۔ یونائٹڈ نیشنز کے فارمر سیکرٹری جنرل کوفی عنان، انہوں نے بھی 2001 میں کچھ ایسی ہی بات کی۔ پانی کے بغیر ہمارا گزارا نہیں۔ عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ تر پانی پینے کے لیے یا نہانے دھونے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں دنیا کا تقریباً 75% پانی زراعت یعنی ایگریکلچر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ دنیا کا تقریباً 3/4 یعنی 3/4 پانی گلیشیئرز اور آئس کیپس کی شکل میں پہاڑوں پر جمع ہوا ہے۔ صرف کچھ فیصد میٹھا پانی دریاؤں اور چشموں میں ملتا ہے، اور دنیا کے کچھ سب سے بڑے گلیشیئرز یہاں پائے جاتے ہیں، دی ہمالیاز۔ یہیں سے یہ دریا بھی نکلتا ہے، یارلنگ سیمپو۔ اس وقت دنیا میں اگر کسی دریا پر بڑے ڈیم بننے کی بات ہو رہی ہے تو وہ یہی ہے۔ Viewers, we are now turning attention to what could be an extremely important aspect of water security for India. Now, China has begun constructing a massive dam on Brahmaputra River. This is a project for a mega dam in the region of Tibet. 21 جولائی 2025 کو چائنا نے اس دریا پر ایک ہائیڈرو الیکٹرک پاور پروجیکٹ پر باقاعدہ کام کا آغاز کیا۔ مٹاؤ یا میڈوک ہائیڈرو الیکٹرک پاور پلانٹ اپنی نوعیت کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہوگا۔ اس کا سائز کتنا بڑا ہے یہ سمجھنے کے لیے ذرا یہاں دیکھیں۔ 3 گارجز ڈیم، چین کی سول انجینئرنگ کا ایک شاہکار۔ یہ اتنا بڑا ڈیم ہے، یہ اپنے ساتھ اتنا زیادہ پانی روکتا ہے، اس کا ماس اتنا سارا ہے کہ 2003 میں جب اس کی انوگریشن ہوئی تو بس اس کے کچھ عرصے بعد ہی دنیا کی روٹیشن ہلکی ہو گئی۔ 3 گارجز ڈیم سالانہ 95 بلین کلو واٹ آورز بجلی پیدا کرتا ہے۔ یارلنگ سیمپو دریا پر جو ہائیڈرو الیکٹرک پاور پلانٹ بنایا جا رہا ہے وہ اس سے 3 گنا زیادہ بجلی پیدا کرے گا۔ یارلنگ سیمپو چائنا کے تبت آٹونومس ریجن سے نکلتا ہے، لیکن یہاں پر ایک مسئلہ ہے۔ یہی دریا آگے جا کر انڈیا میں برہما پترا اور پھر اس سے نیچے بنگلہ دیش میں جمنا کے نام سے صدیوں سے بہہ رہا ہے۔ برہما پترا انڈیا کی اروناچل پردیش اور اسام ریاستوں سے گزرتا ہے، جہاں پر کروڑوں کسانوں اور مچھیروں کا جینا مرنا اسی دریا کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ انڈیا میں خوف ہے کہ کہیں چائنا اس دریا کا پانی نہ روک دے یا ایک ساتھ بہت سارا پانی نہ چھوڑ دے، جس سے نیچے کے علاقوں میں سیلاب آ سکتا ہے۔ اروناچل پردیش کے چیف منسٹر نے تو مٹاؤ ہائیڈرو الیکٹرک پاور پلانٹ کو واٹر بوم تک کہہ دیا۔ انڈیا کے خدشات اپنی جگہ کسی حد تک ٹھیک ہے۔ انڈیا اور چین کے درمیان سالوں سے بارڈر کو لے کے تنازع ہے۔ 1962 میں دونوں ملکوں کے درمیان 1 مہینے طویل جنگ ہوئی اسی بارڈر کے مسئلے پر۔ چین تو آج تک اروناچل پردیش کو ساؤتھ تبت کہتا ہے۔ 2020 میں ایک بار پھر ان دونوں ملکوں کی فوجیں لداخ کے مقام پر آمنے سامنے آ گئیں۔ دونوں طرف 2 درجن سے زیادہ فوجی مارے گئے۔ ٹرانس باؤنڈری ریورز یعنی وہ دریا جو 2 یا اس سے زیادہ ممالک آپس میں شیئر کرتے ہیں اور جیو پالیٹکس کا بہت قریبی تعلق ہے۔ بین الاقوامی سیاست یارلنگ سیمپو برہما پترا پر کس طرح اثر انداز ہو رہی ہے یہ بھی دیکھنا بہت ضروری ہے۔ 2 دہائیوں سے ویسٹرن ممالک نے، خاص طور پر امریکہ نے، انڈیا کو چین کے خلاف ایک ریجنل بیلنسنگ پاور کے طور پر کھڑا کرنے کی کوشش کی ہے۔ امریکہ نے انڈیا کو سول نیوکلیئر ٹیکنالوجی دی، کوارڈ جیسے فورم کا حصہ بنایا، لاکھوں انڈینز کو ویزے دیے گئے۔ ان میں سے کچھ انڈین اس وقت امریکہ کی سب سے بڑی ٹیک کمپنیز میں CEOs ہیں۔ انڈیا اپنے بہت سارے ہتھیار اب روایتی دوست رشیا کے بجائے ویسٹرن ممالک کی کمپنیز سے خریدتا ہے، خصوصاً اسرائیل سے۔ اب اگر ان سب حقائق کے تناظر میں دیکھا جائے تو واقعی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یارلنگ سیمپو برہما پترا کے مسئلے پر انڈیا اور چائنا کے درمیان واقعی جنگ کے چانسز بہت ہیں، خصوصاً اس لیے کہ انڈیا اور چائنا کو اس وقت پانی کی قلت کا سامنا ہے۔ ٹرانس باؤنڈری ریورز کتنے ضروری ہوتے ہیں یہ کسی انڈین کو سمجھنے کے لیے بہت دور جانے کی ضرورت نہیں۔ وہ برابر میں
पाकिस्तान की तरफ देख सकता है। 1960 में पाकिस्तान और इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी पर दस्तखत किए। इस ट्रीटी के तहत दोनों मुल्कों ने रावी, झेलम, चिनाब और इंडस जैसे दरियाओं के पानी को मिलकर इस्तेमाल करने का फैसला किया। उस वक्त से लेकर 2025 तक इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान 3 बड़ी जंगें हुई, लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी अपनी जगह बरकरार है। लेकिन फिर 22 अप्रैल 2025 को इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर के पहलगाम रीजन में एक दहशतगर्द हमला हुआ। इस अफसोसनाक हमले में 26 इंडियन शहरी मारे गए। इंडिया ने बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया और इंडस वाटर ट्रीटी के तहत होने वाली कोऑपरेशन को खत्म कर दिया। इस ट्रीटी के तहत दोनों मुल्कों के वाटर कमिश्नर्स एक दूसरे के साथ राब्ते में रहते हैं। अगर पानी की किल्लत हो या सैलाब का खतरा हो तो वो इस हवाले से एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। इंडिया से आने वाले दरिया पाकिस्तान की एग्रीकल्चर की लाइफलाइन है। पाकिस्तान की ज़राअत का 70% पानी इन्हीं दरियाओं से आता है। इस पानी को बंद कर देना ऐसा ही है जैसे पाकिस्तान के ऊपर जंग मुसल्लत कर दी जाए। ये ट्रीटी कितनी जरूरी है, इस बात का अंदाजा इंडिया और पाकिस्तान को इस वक्त शिद्दत से महसूस हो रहा है। अभी कुछ अरसे पहले ही मानसून की शदीद बारिशों के बाद दोनों मुल्कों में ही बदतरीन सैलाब आया। चीन से निकलने वाला यार्लंग सैंपो भी इतना ही जरूरी है, लेकिन इस दरिया पर जंग के कितने चांसेस हैं, ये समझने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि मुटाओ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इस दरिया पर क्यों बनाया जा रहा है, इसका फायदा या नुकसान क्या होगा। चीन में 94,000 यानी 94,000 डैम्स हैं, लेकिन चीन को इससे भी ज्यादा डैम्स की जरूरत है। डैम्स पानी की मैनेजमेंट में मदद करते हैं। जब ज्यादा बारिशें होती हैं तो यही डैम पानी को स्टोर करते हैं। खुश्क साली के वक्तों में यही डैम हमारी पानी की जरूरियात को पूरा करते हैं। दरियाओं के पानी को बिजली बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और चीन जैसा मुल्क जिसकी मईशत, फैक्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग पर इतना ज्यादा इन्हिसार करती है, उसको तो बहुत सारे पावर प्लांट्स की जरूरत है। इसका मतलब है उसे और डैम्स बनाना पड़ेंगे। इस वक्त चीन की तकरीबन 70% बिजली कोयले से चलने वाले पावर प्लांट से आती है। चीन की हुकूमत ने ये फैसला किया है कि वो 2050 तक ये सारे कोयले के पावर प्लांट बंद कर देगी। इसका मतलब है चीन को हर साल 5.4 ट्रिलियन किलोवाट आवर्स इजाफी बिजली की जरूरत पड़ेगी। इस लिहाज से मुटाओ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट चीन के लिए बहुत जरूरी है। एशिया के कुछ सबसे बड़े दरिया चीन से निकलते हैं, तो ये कोई अनोखी बात नहीं अगर चीन ने इतने सारे डैम बनाए हैं। सवाल ये है कि चीन की हुकूमत ने ऐसे सबसे बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के लिए यार्लंग सैंपो का ही क्यों इंतखाब किया? क्यों ऐसे दरिया के पानी के रुख को मोड़ने की बात की जा रही है जो इंडिया के लिए इतना जरूरी है? इस सवाल के जवाब को तलाश करने के लिए हमें इस रीजन की जियोग्राफी और हाइड्रोलॉजी को समझना पड़ेगा। दरियाओं का पानी पहाड़ों की ऊंचाई से नीचे समंदर की तरफ बहता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स इसी कुदरती फ्लो को इस्तेमाल करके बिजली बनाते हैं। पानी की मोशन से बड़े बड़े टरबाइंस को घुमाया जाता है जो फिर जनरेटर्स की मदद से बिजली पैदा करते हैं। कुछ डैम्स का मकसद पानी रोकना या उसको इस्तेमाल करना नहीं होता, वो सिर्फ बिजली पैदा करने के मकसद से बनाए जाते हैं। इस तरह के प्रोजेक्ट्स में पानी के रुख को अमूमन मोड़ दिया जाता है ताकि वो किसी ऊंचाई वाली जगह से तेजी से नीचे की तरफ आए। इस तरह के हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स कितनी बिजली पैदा करते हैं, इस बात का तयन पानी की रफ्तार, उसकी मिकदार और वो कितनी ऊंचाई से नीचे की तरफ आ रहा है ये फैसला करते हैं। चीन यार्लंग सैंपो पर जिस जगह मुटाओ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बना रहा है वो ये है यार्लंग गॉर्ज। ये दुनिया का सबसे गहरा गॉर्ज है, अमेरिका की ग्रैंड कैनियन से भी ज्यादा गहरा। यार्लंग सैंपो की एक खास बात ये है कि ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ बहता है, लेकिन फिर इस मकाम पर 7,782 मीटर ऊंची नमचा बरवा पहाड़, इसके गिर्द ये एकदम घूमकर इंडिया में दाखिल हो जाता है। इस जगह को द ग्रेट बैंड कहते हैं। इस जगह की खास बात यह है कि यहाँ पर सिर्फ 50 किलोमीटर के डिस्टेंस पर यार्लंग सैंपो का पानी 2000 मीटर तेजी से नीचे की तरफ आता है। चाइना के नजदीक एक बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाने के लिए ये आइडियल जगह है। मुटाओ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट पर यकीनन अभी काम शुरू हुआ है, लेकिन इस प्रोजेक्ट के हवाले से 2016 से बातें चल रही हैं। यार्लंग सैंपो पर बनने वाले इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट पर जब बकायदा काम का आगाज हुआ तो कुछ इंडियन एक्सपर्ट्स ने ये इशू रेस किया कि ये प्रोजेक्ट एक एक्टिव सिस्मिक जोन पर बनाया जा रहा है, यानी एक ऐसी जगह पर जहां अर्थक्वेक के आने के बहुत खतरात हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है कि यार्लंग सैंपो एक सूटर जोन से गुजरता है, यानी एग्जैक्टली उस जगह से जहां 50 मिलियन साल पहले इंडियन टेक्टोनिक प्लेट एशियन प्लेट से टकराए थे और इसी की वजह से तो हिमालयन माउंटेन रेंज वजूद में है। शायद बाकी दुनिया के लिए वाकई एक परेशान कुन बात हो, लेकिन चीन के लिए इस तरह के मुश्किल सिविल इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट्स बनाना
कोई अनोखी बात नहीं। मुटाओ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट पर $167 बिलियन खर्च होंगे। यकीनन चीन की हुकूमत ने इन सब बातों को मद्देनजर रखा होगा। अब जरा बात करते हैं, क्या चीन ब्रह्मपुत्रा का पानी रोक सकता है? चीन मुटाओ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट खालिस बिजली पैदा करने के लिए बना रहा है। चाइना डेली के मुताबिक ये प्रोजेक्ट दरअसल 5 कैस्केडिंग डैम्स पर मुश्तमिल होगा, यानी पानी पहले एक डैम में जाएगा, वहां से दूसरे में और फिर वहां से नीचे बाकी डैम्स में। इंडिया में लोगों के खदशात को दूर करने के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि ब्रह्मपुत्रा में पानी आता कहां से है। इंडिया की असम और अरुणाचल प्रदेश रियासतें दुनिया की उन जगहों में से हैं जहां सबसे ज्यादा बारिशें होती हैं। किसी भी दरिया के लिए उसका कैचमेंट एरिया बहुत जरूरी होता है, यानी जमीन का वो हिस्सा जहां से एक दरिया पानी जमा करता है। और ब्रह्मपुत्रा के केस में तकरीबन 70% पानी इंडियन साइड से जमा होता है। तो ये कह देना कि चीन इंडिया का पानी रोकने की कोशिश कर रहा है, ये बात ठीक नहीं। यार्लंग सैम्पू पर बनने वाला ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट चीन और इंडिया के दरमियान जंग का सबब बनेगा, इसके आसार बहुत कम है। अगर आप गौर से देखें तो पिछले कुछ सालों में इंडिया और चीन के ताल्लुकात पहले से काफी बेहतर हो गए हैं। चीन ने इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट पर काम का आगाज शुरू किया तो इंडिया की हुकूमत ने इस पर कुछ खास रद्देमल तक नहीं दिया। और जहां तक बॉर्डर पर तनाज़े का ताल्लुक है तो 2024 के आखिर में इन दोनों मुल्कों ने अपने बहुत सारे मसलों के ऊपर एग्रीमेंट कर लिया। ये सब बातें कि इंडिया और चीन के दरमियान पानी के मसले पे एक बड़ी जंग हो जाएगी, ये मीडिया और सियासतदानों की फैलाई हुई है। जंग, लड़ाई, ये खौफ फैलाना कि आपका पानी रोक दिया जाएगा, ये सब बातें सियासतदान वोटर्स को डराने के लिए करते हैं। वो ये साबित करना चाहते हैं कि अगर उनको इलेक्ट नहीं किया गया तो वाकई उनका पानी रोक दिया जाएगा। ये बात बिल्कुल ठीक है कि पानी के ऊपर मुल्कों के अंदर यानी अंदरूनी मुल्क झगड़े होते हैं। इस तरह के वाकयात हमें चाइना, पाकिस्तान, इंडिया हर जगह देखने को मिलते हैं। लेकिन क्या कभी दो मुल्कों के दरमियान सिर्फ पानी के मसले के ऊपर जंग हुई? इस सवाल के जवाब के लिए मैंने प्रोफेसर एरन वुल्फ से रब्ता किया। प्रोफेसर वुल्फ ट्रांस बाउंड्री वाटर कॉन्फ्लिक्ट्स पर एक अथॉरिटी हैं। जरा सुनिए उन्होंने मुझे क्या बताया। मैं ये नहीं कह रहा कि पानी पे तसर्रुफ के लिए जंग कभी नहीं लड़ी जाएगी। मुमकिन है ऐसी जंग कभी हो भी जाए, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूँगा, माजी में करीबन 800 आबी मुआहदे हो चुके हैं ऐसे फरीकैन में जो एक दूसरे के शदीद मुखालिफ थे, मगर फिर भी ऐसी मिसालें बमुश्किल मिलती हैं जहाँ आबी तनाज़ात ने सरहद पार जारियत को जन्म दिया हो। मेरे ख्याल में ये एक खुशाइंद अम्र है। सच्ची बात तो ये है कि ट्रांस बाउंड्री रिवर्स, इस पर जंगें तो नहीं हुई लेकिन कोऑपरेशन हमेशा हुई है। पाकिस्तान और इंडिया को ही देख लें, अभी मई के महीने में इन दोनों मुल्कों के दरमियान एक छोटी सी जंग हुई जिसमें पाकिस्तान ने इंडिया के 6 जहाज गिरा दिए। लेकिन फिर जुलाई और अगस्त में शदीद मानसून बारिशों के बाद जब सैलाब आया और जब इंडिया ने दरियाओं में पानी छोड़ा तो उसने ये इंफॉर्मेशन पाकिस्तान के साथ बर वक्त शेयर की ताकि पाकिस्तान के अंदर जो लोग दरियाओं के किनारों पे रहते हैं उनको बर वक्त इवैक्यूएट कराया जा सके। अब हम सब बस उम्मीद कर सकते हैं कि 21वीं सदी पानी के ऊपर जंगों की नहीं बल्कि कोऑपरेशन की सदी बनेगी। ये वीडियो देखने का शुक्रिया।